Chalo guys, so a very good evening to all of you. So let's start with our second class on our ZAT previous year VARC questions. Okay. So let me bring up the first question of the day. So quickly give this a try and then I'll discuss the answer. Yes, Sujal, the first session is available on our YouTube link. Okay. Today in the morning itself, Shivam sir might have provided or has definitely provided the link so you can access that on the YouTube channel itself. Okay. चलो इसका बताओ फटाफट. Need to tell me which all statements are grammatically correct. It's fine. Like if you don't know the answer, then it's fine. Otherwise, don't think I'll judge you with the answers that you give. It's absolutely fine if you even guess the answers. Okay. Chalo. Let me discuss this question now quickly. So you need to pick out which statements or statement are or is grammatically correct. So Chatterjee loves books. Therefore, he reads them all the time. अब देखो यहाँ पे तीन सेमीकोलन फुल स्टॉप एंड कॉमा का यूसेज गिवन है. सो दैट वी नीड टू सी. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेमीकोलन हैज बीन यूज्ड परफेक्टली. यहाँ पे कोई मिस्टेक है नहीं. वाई? बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन जो कर रहा है यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को या फिर क्लोजली रिलेटेड स्टेटमेंट्स को लिंक कर रहा है with the help of therefore. Therefore means to conclude, right? So यहाँ पे Chatterjee loves books, semicolon, therefore, comma, he reads them all the time. यहाँ पे close relation है ना इसको. So that's why यहाँ पे semicolon has been used correctly. ठीक है. So semicolon का usage यही होता है. It is used to link to related clauses, you can say. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. चैटर्जी लव्स बुक्स फुल स्टॉप देयरफॉर ही रीड्स देम ऑल द टाइम. सेकेंड में देखो अगेन यहाँ पे जो फुल स्टॉप यूज किया गया है एंड देन अ न्यू सेंटेंस begins with the word therefore followed by a comma. This is also grammatically correct. ठीक है. So there is nothing wrong with this statement. Third, let's see this. Chatterjee loves books and therefore reads them all the time. यहां देखो कंस्ट्रक्शन दिस यूज ऑफ दिस कंस्ट्रक्ट फॉलोड बाय द वर्ड एंड के बाद यहाँ पे परफेक्टली यूज किया गया है. यहाँ पे एंड के बाद देयरफॉर रीड्स देम ऑल द टाइम. यहाँ पे दिस हैज बीन यूज्ड अप्रोप्रिएटली. यहाँ पे देखो ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर कि चैटर्जी लव बुक्स and therefore reads them all the time. Because he loves books, he reads them all the time. This statement is also correct. ठीक है. So all the three statements have been used correctly. So that's why यहाँ पे the correct answer is option E. Guys, please don't write it on this screen because I won't be able to remove it from my. So please remove that so that subsequent slides में it won't show up. ठीक है. Yeah, thank you. चलो let's quickly move on to the next question. इसको try करो then फटाफट we'll move forward.
Okay. And anyone else with any other option? I've got one B. Just quickly give it a try within next 30 seconds, then I'll discuss the answer. चलो, let's see this answer. अब देखो, before I begin solving or plugging in the words from the options, मैं बस बता देता हूँ how do we actually use and what is the meaning of all these words, right? Affect without an ed, affect is used कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज होता है? इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ड की तरह यूज होता है. एंड इट मीन्स to bring about a change or to influence, right? Just give me a second. I'll move this chat screen over here. Hmm. So to influence or bring a change. ठीक है, ये मतलब होता है affect with an a. Effect, इफेक्ट ई वाला जो होता है उसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं. एंड इसका क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग इन इफेक्ट अ रिजल्ट ऑफ समथिंग और आउटकम ऑफ समथिंग, राइट? अब इसका ही चलो देख लेते हैं. इफेक्टेड विद एन ईडी. इफेक्टेड अगेन वर्ब की तरह यूज होता है एंड इट मीन्स कॉज्ड टू हैपन. ठीक है, इट मीन्स कॉज टू हैपन. लास्ट अफेक्टेड बचा, राइट? अफेक्टेड. एंड ये जो अफेक्टेड है, दिस इज द पास्ट टेंस. ये इसका पास्ट टेंस नहीं है, बट affected with this ed is the past tense of this word itself. ये भी verb की तरह यूज होता है but it is the past tense. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? influenced और bring about a change in past. ठीक है, सेम मीनिंग है. बाकी वो पास्ट टेंस में यूज होता है बट दिस इज नॉट द पास्ट टेंस. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. लेट्स क्विकली सी द सेंटेंसेस. The suspension of the captain may dash the number of spectators who turn up for the match. कैप्टन सस्पेंड हो गया तो वो क्या होगा? इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना. तो दिस विल बी अफेक्ट विद एन ए. सो डेफिनेटली फर्स्ट तो अफेक्ट होगा. सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल डायरेक्टली डैश द कॉस्ट ऑफ रिटेल गुड्स. अगेन यहां देखो गाइस, कौन सा वाला आएगा? क्या ये आउटकम वाला आएगा या फिर इन्फ्लुएंस और ब्रिंग अबाउट अ चेंज वाला होगा? दिस विल अगेन बी दिस इन्फ्लुएंस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से इट विल डायरेक्टली और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ रिटेल गुड्स ना. सो यहाँ पे अफेक्ट विद एन ए फिर से यही वाला है. इट विल नॉट बी इफेक्ट. ठीक है. Next, grandmother's advancing age could dash her ability to take care of the house. यहां पे देखो, एडवांसिंग एज की वजह से अगेन इट विल हैव एन इन्फ्लुएंस ना. तो यहाँ पे फिर से अफेक्ट होगा. इट विल नॉट बी इफेक्ट. यहाँ पे कोई आउटकम नहीं आ रहा. यहाँ पे अफेक्ट हो रही है उनकी एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस. ठीक है, सो अगेन अफेक्ट विल कम. लास्ट, she dash a Texan accent throughout the interview. So यहाँ पे क्या आ रहा है? affected आएगा with a. ठीक है, यहाँ पे affected आएगा with an a बिकॉज यहाँ पे उसने पास्ट फॉर्म में इंटरव्यू देते टाइम एक्सेंट, टेक्सास वाला वो एक्सेंट यूज किया था. ठीक है, सो affect, affect, affected, which means option C will be the correct answer. ठीक है. You want some examples of effect, right? Okay. अब देखो, इफेक्ट कब होता है? when it is a result of something, है ना, ड्यू टू समथिंग.
सो कैसे कैसे होगा यूसेजेस? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ पे दो चीज और है। द वेदर कैन डैश योर मूड। लेट मी हेल्प यू विथ गिविंग यू डायरेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द टू, तभी समझ में आएगा। ठीक है, देर आर टू एग्जाम्पल्स। अभी मत बताओ, जस्ट लेट मी नो कि इफेक्ट कब आएगा एंड अफेक्ट कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे द मेडिसिन had a positive dash on his health। यहाँ पे बताओ अफेक्ट का आएगा इफेक्ट का आएगा? इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मीनिंग। आउटकम के बेसिस पे होता है तो वो इफेक्ट होता है, और इन्फ्लुएंस या ब्रिंग अबाउट अ चेंज होता है तब अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या होगा, वेदर क्या कर रहा है, तुम्हारे मूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो यहाँ पे अफेक्ट होगा। सेकेंड में मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद उसका इफेक्ट होता है ना, सो इट विल ब्रिंग एन इफेक्ट विद एन ई। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है और एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग कुछ हो रहा है, तब हम बोलते हैं इफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल एक्चुअली। Anangam has given an example, the course had a positive effect on the students। ठीक है, सो इफेक्ट मींस इट इज अ रिजल्ट, कोर्स का जो इफेक्ट था वो पॉजिटिव था, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट, और एग्जांपल द गवर्नमेंट्स डैश पॉलिसी, द गवर्नमेंट्स सो एंड सो पॉलिसी हैड अ गुड इफेक्ट ऑन द सिटीजंस। इफेक्ट ई वाला इफेक्ट होगा। ठीक है, सो आउटकम बेस्ड कभी भी कुछ मीन करना होगा तो हम इफेक्ट डालते हैं, जब हमें इन्फ्लुएंस शो करना होता है तो अफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। चलो गाइस, सो लेट्स क्विकली डिस्कस दिस आउट। सो फर्स्ट प्लैंक में व्हाइल स्टार्टअप्स हैव डैश रीच। अब देखो स्टार्टअप्स के साथ क्या होता है, वील गो वेरी लॉजिकली विद दिस क्वेश्चन। स्टार्टअप्स के पास कम रीच होता है, सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आएगा या लिमिटेड आएगा? लिमिटेड इज सर्टेनली अ बेटर वर्ड। रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव होता है, लिमिटेड होता है। इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग तो तुम्हारे पास लिमिटेड रीच होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट मीन्स किसी को रोकना, लिमिटेड मीन्स कि हाँ स्टार्टिंग में कमी थी। सो लिमिटेड इज सर्टेनली अ बेटर वर्ड व्हेन वी यूज विद स्टार्टअप्स। ठीक है, नेक्स्ट डैश दे इंट्रोड्यूस डैश प्रोडक्ट्स, दे ओपन अप डैश मार्केट्स। अब यहां देखो
हमारे पास सेकेंड वर्ड, अब देखो फर्स्ट वर्ड हमने लिमिटेड लगा दिया, सो दैट मीन्स आई नो रिस्ट्रिक्टेड, ए एंड डी तो एलिमिनेट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद लिमिटेड के बाद सिंस, व्हेन एंड इफ दे इंट्रोड्यूस। अब देखो कंडीशनल थोड़ी ना है, इफ दे इंट्रोड्यूस दे विल हैव टू लॉन्च, तो बी से तो कोई मतलब बनेगा नहीं। सेकेंड है सिंस दे इंट्रोड्यूस, अब सिंस थोड़ी ना यूज होगा, कोई टाइमलाइन थोड़ी ना गिवन है, सिंस दिस डे दे हैव लॉन्च्ड, सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। सो ऑप्शंस को दैट में गाइस प्लीज मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन एलिमिनेशन से यू कैन actually get to the correct answer even if you don't know XYZ background of that question. Options use करके you can play around and चार words में से दो word तो पता होगा ना, so it will definitely help you out in figuring out the correct answer. ठीक है, तो यहाँ पे when तुम introduce innovative products करोगे तो then it will open up new markets for you. So yes, option E is definitely the correct answer. ठीक है, चलो let's see this question on question tag. ठीक है, just try this and then I'll discuss the concept behind this. It's an arts class, ठीक है, मतलब 8 बजे तक होगा, 8:85 I'll be leaving you. Just remember the concept behind question tags. फटाफट बताओ, then I'll discuss the answer. चलो let me discuss this answer. अब देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, it is divided into two halves. First half is a normal sentence followed by an interrogative part, which in itself is a question tag. So normal first part, if it is having a positive annotation, मतलब positive sense बनता है, तो तब जो question form होता है that is asked in negative form. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर जो कि नॉर्मल सेंटेंस होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन भी कैसे पूछते हैं, इट विल बी फ्रॉम द वर्ब इटसेल्फ। ठीक है, वर्ब एंड सब्जेक्ट से जो बनता है उसी से हम मिला के क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही निकालेंगे। ही हैज फ्यू रीजंस फॉर सेइंग नो टू द मैच। So is this part a positive clause or a negative one? बताओ फटाफट। It's a negative one. ठीक है, few reasons it gives a negative, it has a negative connotation. ठीक है, तो यहाँ पे negative है first, so it has been appropriately used as has he. So this is a correct sentence. तो ये आंसर नहीं है हमारा एक्चुअल। ठीक है, ये आंसर नहीं है। टिक मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट। फाइनली जब जो भी गलत होगा दैट आई विल मार्क इट ओवर हियर। Nobody has called you, have they? अब nobody means negative. ठीक है, ठीक है, so nobody has called you, have they? So this is again a correct sentence. ठीक है, नेगेटिव के साथ यहाँ पे पॉजिटिवली यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज यू लाइक टू प्ले, डोंट यू? यस डेफिनेटली, अब पॉजिटिव क्वेश्चन है, यू लाइक टू प्ले, डोंट यू is again a correct statement. Now let's see this. Moreover, he plays well, isn't it? अब देखो यहाँ पे ये पार्ट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट द क्वेश्चन टैग जो कि बना हुआ है वो गलत है।
ही प्लेस, इसमें वर्ब क्या होगा जब पूछोगे? इट तो किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होता है ना, ही गिवन था। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है वो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था डजंट ही। ठीक है, डजंट ही होता तो वो करेक्ट होता, सो दैट मीन्स दिस इज आर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो ये गलत यूज हुआ। This is also correct. There's a little point in doing anything about the maths. This is also a negative part. Little point means there's very little scope. ठीक है, so is there. So this is also a correct sentence. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। आर्टिकल्स के बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से बता। ओके, लेट्स डिसाइड दिस और डिस्कस दिस रादर। सो यहाँ पे आर्टिकल के यूसेजेस देखने, वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट बट वी हैवंट डिसाइडेड विच वन। सो यहाँ पे जो अ रेस्टोरेंट यूज हुआ है, यस वी डोंट नो एनी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे अ हैज बीन यूज्ड अप्रोप्रिएटली। सो यहाँ पे ये तो करेक्ट हुआ। सो एनी ऑप्शन इन्वॉल्विंग वन विल बी रॉन्ग, राइट? सो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट, वी वेंट टू द टॉयलेट बिहाइंड अ ट्री। ठीक है, एक किसी पेड़ के पीछे वी वेंट टू द टॉयलेट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यू गो टू द टॉयलेट, हमेशा द आर्टिकल आता है टॉयलेट के साथ बिहाइंड अ ट्री। यहाँ पे ये मत बोलना कि स्पेसिफिक ट्री है, नो वी डोंट नो, बहुत सारे ट्री होंगे, किसी स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर ट्री के पीछे चले गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन भी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट लेट्स सी, इट वाज द नवंबर आफ्टर वी वेंट टू इंडोनेशिया। अब यहां पे देखो, why दिस आर्टिकल इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक मंथ बोल रहा है ना। वी, इट वाज द नवंबर, एक स्पेसिफिक मंथ में हम गए थे, नवंबर में गए थे आफ्टर वी वेंट टू इंडोनेशिया। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक मंथ ऑल्सो वी कैन यूज द आर्टिकल द बिफोर एनी मंथ इफ वी वांट टू स्पेसिफाई कि किस पर्टिकुलर डेट या पहले, जो भी वट एवर इट इज, हम द लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली करेक्ट, तो थ्री भी नहीं होगा। नेक्स्ट, वी definitely are left with only one option, but let me just quickly walk you through. My friend is traveling to UK। देखो यूके के साथ हमेशा द आता है बिकॉज यूके ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उसमें। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ पे द यूके आता है हमेशा, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, शी ड्रिंक्स मेडिसिन बाय अ लीटर। देखो यहाँ पे दो चीज होती है, अ लीटर बाय अ लीटर तो कुछ नहीं होता, एक होता है बाय द लीटर व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक क्वांटिटी इन माइंड। तब हम द लीटर लिखते हैं व्हेन यू हैव स्पेसिफिक क्वांटिटी इन माइंड। ठीक है, अप्रोप्रिएटली हम ऐसे यूज करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी को बताने के लिए, बट फॉर्मली हम बाय लीटर ही यूज करते हैं विदाउट एनी आर्टिकल। ठीक है, बाय लीटर is a more formal and an appropriate usage। तो ये would by liter would have been the answer if इसको करेक्ट करने के लिए बोला जाता तो। ठीक है, सो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, वुड यू रादर गो आउट और वॉच अ टीवी। अब देखो यहाँ पे टीवी के साथ अ नहीं लगाते, यू ईदर से वॉच टीवी
or you say watch the TV. Both are correct, but a nahi lagate. You either say watch TV or watch the TV. Both can be correct. ठीक है, बट अ कभी नहीं लगाते टीवी के साथ. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई. चलो, लेट्स सॉल्व सम पॉइंट. दो क्वेश्चन है गाइस, एक साथ आंसर करना, ठीक है. जस्ट हिट द एंटर बटन ओनली व्हेन यू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है. एक ही बारी में आंसर देना. Okay, I've started getting some answers, so let's discuss this. ठीक है. So this poem says, sit, drink your coffee here. Your work can wait a while. You're 26 and still have some life ahead. मतलब the poet over here is asking you to take a break from your busy life, right? You by 26 it means is you definitely have some experience, but you have a great life ahead. मतलब great नहीं, you have a life ahead, but you should take some pause from your busy life, right? यही समझ में आ रहा है फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद. नो नीड फॉर विट, just talk vacuities and I'll reciprocate in kind or laugh at you instead. So what does this line mean is कि the conversation which you have does not have to make any sense. मतलब कुछ भी बकवास भी करते रहो, I will laugh along with you. मतलब होता है ना हम लोग दोस्तों के बीच में, it does not necessarily have to be a conversation, a meaningful conversation. Just you can talk anything and laugh at each other, right? तो वही मतलब है इस लाइन का. डोंट, नो नीड फॉर वेट, मतलब दिमाग से बात करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज टू ओपेक, डिस्ट्रेसिंग एंड प्रोफाउंड. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वर्ल्ड है काफी ओपेक है, काफी दिखता नहीं, इट्स नॉट क्लियर. ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यू नो राइट, यू कैन नॉट सी थ्रू दैट,
राइट। एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो ओपेक के थ्रू देख नहीं पाते एकदम सीधा, राइट। सो ओपेक, डिस्ट्रेसिंग एंड प्रोफाउंड। दिस 20 minutes rendezvous वुड मेक माई डे। ठीक है, दोस्तों के साथ बैठ के दिस विल एक्चुअली मेक योर डे फ्रॉम योर बिजी वर्क। ठीक है, टू सिट हियर इन द सन विद grackles all around, staring with beady eyes and you 2 feet away। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? द पोएट इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ पीस एंड सिंप्लिसिटी इन दी स्मॉल प्लेजर्स। 26 minutes मतलब एक छोटा सा मोमेंट है, बट इट्स सेइंग कि स्मॉल स्मॉल इंस्टेंस में, स्मॉल स्मॉल छोटी से छोटी चीजों में you should be finding small pleasures। ठीक है, so this is the overall essence of this whole poem। ठीक है, so let's quickly see the questions। First question is, which of the following best captures the essence? So let's create our own meaningful life। खुद का meaningful life नहीं ऐसा बोला है, it's just says take a pause and live life actually। ठीक है, so this is definitely not the correct answer। Next, let's be gibberish। अब gibberish means something which is made but it does not have a meaning, right? Gibberish images and pics देखा होगा, right? On chat gpts and gemini and all you would have created। Altogether it does not have any real sense, but still it is there। उसका कोई practical usage नहीं है, but है वो। So this is also incorrect meaning। Let's see, drink and marry in the lap of nature। See, नेचर की बातें नहीं बोली गई इसमें, बोला गया जस्ट स्टॉप एंड फाइंड पीसफुल विद योर फाइंड पीस amongst the busyness of your life। busyness, business नहीं, busyness of your life, वो मतलब था, not this। Next, let's enjoy a moment of peace in this busy life। Yes, absolutely correct। और लास्ट में ये नहीं बोला लेट्स सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस नॉट आवर वर्क। ये कहीं पर भी नहीं बोला कि काम को छोड़ के अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्टेड मीनिंग। सो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देखो फटाफट। इट सेज व्हाट डज द पोएट बेस्ट कन्वे बाय मेंशनिंग grackles in these lines। ये वाला, with grackles all around, staring with beady eyes and you 2 feet away। सो इसका यही मतलब है दैट ग्रैकल्स जो क्रीचर्स होते हैं वो भी धूप में बैठे होते हैं ना। सो इट्स नॉट, आई सॉ दैट यू हैव गिवन सी एज द आंसर, बट इट्स नॉट। यहाँ पे ओवर विटी डिस्कशंस ग्रैकल्स आर दी प्लेजेंट बर्ड्स टू लुक एट। नो, विटी डिस्कशन के लिए तो बोला ही नहीं है ना। विटी डिस्कशंस मीन्स वेयर यू हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, वेयर यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस और सेट अप बिजनेस विद योर फ्रेंड्स। ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ग्रैकल्स लाइक ह्यूमंस लव टू बास्क इन द सन। उनको भी पसंद है, क्योंकि यही बोला था ना, टू सिट हियर इन द सन, वो खुद बैठे हुए हैं। एंड ग्रैकल्स भी आते हैं जो क्रीचर्स हैं, वो भी ह्यूमंस की तरह दे लव टू बास्क इन द सन। बस यही सिंपल मीनिंग था। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप you got the overall essence of this whole poem। ठीक है, चलो लेट्स क्विकली मूव ओवर टू द पैसेज। ठीक है, चलो पैसेज पढ़ो, देन वी हैव सेट ऑफ 3 questions। Take your time, let me know once you have read this passage, then I'll show you the questions। And if you are a slow reader, you can even click picture so that if I move forward to the next slide, तो तुम लोग एटलीस्ट इसको पढ़ पाओ पूरा।
Guys, just let me know once you read it through. I'll show you the next slide then. Okay. Another done. I'll move on to the questions then. Uh, okay. So, so these are the questions. So just solve these two questions at once. Hit enter button once. ठीक है? उसको फोटो ले लो. ठीक है? इसकी पिक ले लो so that you can continue reading and let others solve these questions as well. ठीक है? एक ही साथ आंसर करो. एंड अदर्स आंसर बताओ इसका दोनों क्वेश्चन का. चलो ठीक है. सो लेट मी जस्ट क्विकली रीड द होल पैसेज. फटाफट से पढ़ूंगा. So it says, considering the multitude of situations in which we humans use numerical information, life without numbers is inconceivable. मतलब without numbers, it's not possible. But what was the benefit of numerical competence of our ancestors before they became Homo sapiens? ठीक है, Homo sapiens टाइम से पहले न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंस की बात हुई है, राइट? इट मीन्स बेसिकली द होल थिंग एवोल्यूशन जो हुआ है उसमें न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंस की सिग्निफिकेंस है. Why would animals crunch numbers in the first place? It turns out that processing numbers offers a significant benefit for survival, which is why this behavioral trait is present in many populations. Now, the second paragraph says several studies examining animals in their ecological environment suggest that representing numbers enhances an animal's ability to exploit food sources, hunt prey, avoid predation, navigate in its habitat, and persist in social interaction. ठीक है? नंबर्स के बेसिस पे एनिमल्स का जो आगे पीछे जाना, फूड सोर्सेस था, सारा एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑल होता है, दैट इज डिसाइडेड. Now, before numerically competent animals evolved on the planet, सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया. अब देखो एनिमल्स से पहले अब बैक्टीरिया पे पहुंच गए कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं. सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, already exploited quantitative information.
इन्होंने पहले से ही कर रखा था, इवन बिफोर द एनिमल एज. The way bacteria make a living is through their consumption of nutrients from their environment. Mostly they grow and divide themselves to multiply. However, in recent years, microbiologists have discovered they also have a social life and are able to sense the presence or absence of other bacteria. Or in other words, they can sense the number of bacteria. तो आपस में कितने उनके भाई बहन हैं, that they can definitely sense. Take, for example, the marine bacterium Vibrio fischeri. It has a special property that allows it to produce light through a process called bioluminescence, similar to how fireflies give off light. If these bacteria are in dilute solutions where they are alone, they make no light. तो अकेले होते हैं तो कोई लाइट नहीं बनाता. But when they grow to a certain cell number of bacteria, all of them produce light simultaneously. तो मतलब एक particular threshold limit है, जितना इतना हो गए तो वो सारे light produce करते हैं. Therefore, Vibrio fischeri can distinguish whether they are alone and when they are together. तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी इन टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं. समहाउ दे हैव टू कम्युनिकेट सेल नंबर एंड इट टर्न्स आउट दे डू दिस बाय यूनिक यूजिंग अ केमिकल लैंग्वेज. They secrete communication molecules and concentration of these molecules in the water increases in proportion to the cell number. तो जो इनका concentration था, जैसे जैसे इनका population बढ़ता है वो concentration भी बढ़ता है. And when this molecule hits a certain amount called a quorum, it tells the other bacteria how many neighbors there are. तो एक certain, let's say 10 बैक्टीरिया का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है. जैसी 10 बैक्टीरिया और हो जाते हैं, वो सारे लाइट प्रोड्यूस करते हैं. All bacteria glow. They start glowing. This behavior is called quorum sensing. The bacteria vote with signaling molecules. The vote gets counted, and if a certain threshold, वही जो quorum है, if it is reached, every bacterium responds. So this behavior is not just an anomaly of Vibrio fischeri. All bacteria use this sort of quorum senses to communicate the cell number in an indirect way or by a signaling molecule. अब देखो, इसमें हमने यही पढ़ा पूरे पैराग्राफ में, दैट न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंस है एनिमल्स एंड बैक्टीरिया का सर्वाइवल में. एंड ऑल्सो पूरे पैराग्राफ में एम्फोसाइज किया गया है हाउ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज एक्सप्लॉइटिंग फूड सोर्सेज, हंटिंग, प्रिडेशन अवॉइड करने के लिए, हाउ नंबर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. इसमें यह भी बोला गया बैक्टीरिया न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन बताता है थ्रू कोरम सेंसेस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी कि इफ इट हेल्प्स अस टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस और नॉट. सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है दैट whether first cannot be inferred from the passage. Which of the following statements cannot be inferred? So जो नहीं इंफॉर्मेशन निकाल सकते वो बताना है. फर्स्ट वन इज ancestors of Homo sapiens hunted in groups. So option 1 में जो लिखा हुआ है, can you conclude this out? Yes, definitely ना. यहां पे hunting prey, ये सब कुछ उसमें तो होता था, ग्रुप्स में ही तो हो रहा था. सो दिस यू कैन इन्फर ना. तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट, ancestor of Homo sapiens interacted solely using numbers. अब देखो, नंबर्स तो यूज करते हैं, बट दिस वर्ड सोली गिव्स यू एन एक्सट्रीम मीनिंग. ये एक्सट्रीम हो जा रहा है कि जस्ट दिस टेक्निक, यूजिंग दिस टेक्निक दे इंटरेक्टेड. नो, दिस इज नॉट द केस. हम सोली है या नहीं वो हम कंक्लूड नहीं कर सकते. सो यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. अदर्स यू कैन से एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज एंड ग्रुप्स. यस, ये भी करेक्ट था. दे सेंस्ड नंबर्स, ये भी करेक्ट था. मतलब ये आंसर नहीं हो सकते बेसिकली. होमो सेपियंस यूज न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंस. यस, डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं हो सकता. ये सारे ACDE हमारे पैराग्राफ में प्रेजेंट है. सो ओनली थिंग विच वी कैनॉट इन्फर इज दैट solely using numbers they interacted. This you cannot infer. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है?
which of the following statement is not based on the premises of the passage? Premises is a normal statement कि हमें ये बताना है कि कौन सा stated नहीं है. Which of the following cannot be said basis the things that have been uh, talked about in the passage. तो फर्स्ट देखते हैं. First says that no one can whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it. अब देखो यहां पे ये ज्यादा मेटाफोरिकल है. It says how an collaborative effort is required to achieve complex task. ये guys metaphorical है. This is not something directly और practicality के basis पे you can say. अभी के लिए this looks like a good answer to me. ये metaphorical use हुआ है and बस यही बोलना चाहता है कि collaborative efforts are required to achieve complex tasks. ठीक है, इसका ये मतलब होता है. सो इट लुक्स लाइक अ गुड आंसर बिकॉज ये चीज ऐसे नहीं बताई गई है, मेटाफोरिकल वे में नहीं बताई गई. बट लेट्स सी द अदर्स. टीम्स फियर अ रेड कार्ड एट it would present an advantage for the opponents. Yes, definitely. अब let's take an example of football. 11 प्लेयर खेल रहे एक टीम में से, if one gets a red card तो 10 प्लेयर हो जाते हैं. So it reduces the number ना, and उससे क्या होता है, सामने वाले को एडवांटेज हो जाता है. सो ये ऐसी बात तो हमें बताई गई है ना इन द पैसेज. इसका आइडिया, इसका न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन तो बताया गया है ना. सो दिस डेफिनेटली इज प्रेजेंट इन द पैसेज. इसके बारे में बात हुई है. नेक्स्ट, पॉलिटिक्स रैली विद नंबर्स टू वू देयर अनडिसाइडेड वोटर्स. यस, इफ यू से कि इतनी भीड़ हो गई है एंड किसी ने अपना वोट डिसाइड नहीं किया है, दे वोटर्स टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड with after seeing so many people supporting a particular politician or a party, right? So numbers का, again number का जो competence था, which is the primary message of the passage, वो इधर भी है. So this also cannot be the answer. तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं. क्रॉस मीन्स yes, उसके बारे में बात हुई है. Second, to de-escalate a border tension, countries carry out mirror deployment. क्या देखो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं. यस, देखो मिरर डिप्लॉयमेंट मींस यहाँ पे जो बात हुई है, देखो जो पैराग्राफ का पैसेज का मैसेज था, यहाँ पे नंबर्स से प्रोसेसिंग हुई है. बॉर्डर टेंशन को डी एस्केलेट करने के लिए हम मिरर डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब नंबर्स बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जैसे भी टेक्निक्स होती हो आर्मीज वगैरह की. ठीक है, तो मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ यू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर्स ना. तो यहाँ पे अगेन जिसके अंडरलाइन प्रिंसिपल बात हुई है वो बताया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता. द लास्ट वन इज पीपल प्रोटेस्ट इन लार्ज नंबर्स. People protest in large number because it helps them get their voices heard. Yes, definitely. Again, numerical competence. जितना ज्यादा से ज्यादा दिखाओगे उतना तुम सेफ रहोगे. तो ये भी सेड प्रेमिस है, प्रेमाइस है. यहाँ पे हमारा गाइस ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला, बट यहाँ पे ये मेटाफोरिकल था. नो वन कैन विसल अ सिम्फनी. इसमें एफर्ट्स से रिलेटेड बातें की गई है इन अ मेटाफोरिकल वे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड नॉट एनी अदर. ठीक है, चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है फॉर दिस पैसेज.
Yes. So based on the passage, which of the following statement best defines quorum sensing? Quorum sensing was that threshold limit. Once that limit reaches, every bacteria starts glowing, right? So yes, clearly option C, if you see, bacteria responds when they discern enough numbers. Enough means that threshold limit. Okay? So C is the correct answer. बाकी सारे डिस्टॉर्टेड मीनिंग्स है, ओनली ये सारे एक्सट्रीम हो जाते हैं. ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट. चलो, I'll just wait for next 20-30 seconds and I'll discuss the answer. चलो, let's see this. So we can think of the history of life on Earth as a vast, long-term experiment in pure competition. Every living organism is competing with all other living organisms for resources. These are the resources, etc. Nature or the natural world is a laboratory or unfettered competition. It's a dog eat dog, no holds barred, day in and day out struggle. ठीक है, तो यही अभी बताया गया है. नेचर में हर चीज इट इज अ स्ट्रगल और अ कॉम्पिटिशन, जहां पे हर ऑर्गेनिज्म इज फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर. Next paragraph, there are no governmental regulators to protect the weak or favor the strong. All organisms are given a chance, but not necessarily an equal chance. As the climate and environment change, and the change they do, some organisms are favored over others at times, but these advantages are fleeting. What nature gives, nature can take away. तो advantage होता है, but nature उसको भी balance कर देता है, ये बोला गया. So you need to find what can be best concluded. तो passage में यही बोला गया है, nature favors some, but life on earth in general can be considered a competition, right? So first, let's see, elimination technique से ही हम solve करेंगे. Competition is critical to ensure the survival of the fittest. अब देखो, ये नहीं बोला गया है competition necessary है for survival of the fittest. Competition है definitely, but it does not convey the message कि survival मतलब competition necessary है. So this is definitely not correct. Next, without unforgiving competition, the planet will be inundated with the weak. No, again, competition ना हो तो सारे weak लोग रह जाएंगे धरती पे. This is also not the correct conclusion. Next, nature gives a fair opportunity to every organism to survive. देखो, यहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला गया है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर गिवन अ चांस है, बट नॉट एन इक्वल वन. सो फेयर तो नहीं हुआ ना.
पैराग्राफ में एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला गया है। किसी को फेयर चांस नहीं है, सबको चांस मिलता है, बट वो अनइक्वल होता है। ठीक है, सो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला गया है। सो यहाँ पे चीज में गाइस, इन चीजों में गाइस तभी गड़बड़ होता है। इन पेपर्स लाइक कैट और जैट हम लोग छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, सो दैट्स व्हाई वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द की थिंग दैट इस क्वेश्चन में तुम लोगों को ध्यान देना था। नेक्स्ट, फॉरगिवनेस इज एलियन टू द नेचुरल वर्ल्ड। अगेन ऐसा कुछ नहीं था। सो द ओनली थिंग, इवन इफ द वर्ड ओनली इज देयर, ये सही बैठ रहा है। ब्रूटल कंपटीशन इज द ओनली कांस्टेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। कंपटीशन है एंड इट इज द ओनली कांस्टेंट जो कि नेचुरल वर्ल्ड में है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर द डे, देन वील रैप इट अप फॉर टुडे। चलो, सो गाइस देखो, हैड बेटर इज एक्चुअली अ फ्रेज। ठीक है, had better is actually a phrase which means to give advice or recommendation, advice और recommend। एंड इसका जो फॉर्म यूज होता है हमेशा याद रखना, had better के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। बेस फॉर्म या फिर V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो यू कैन क्लियरली सी, had better के साथ टोल्ड नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म हो गया, सो ए एंड बी एलिमिनेट हो गए। बेटर हैड नहीं होता, यू हैड बेटर मीन्स तुम एडवाइस या रेकमेंड कर रहे हो। यू हैड बेटर टेल हर एवरीथिंग और एल्स यू विल लूज अ फ्रेंड। तो यहाँ पे सी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। अब देखो, कोई पूछ रहा है कि विल एंड वुड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, किसी को तुम एडवाइस दे रहे हो या फिर फॉर्मली कुछ बोलना हो तो तब वुड लगाते हो हम लोग। ठीक है, व्हेन यू हैव टू से और डिमांड समथिंग और गिव एडवाइस इन अ फॉर्मल वे, तब वुड लगाते हैं। एंड ऑल्सो विल एंड वुड में एक और यूज होता है कि will is used to suggest something that will happen in future, and would past tense में होता है। past tense of will is would। ठीक है, तो दो यूसेज होते हैं would के। एक तो जब कोई सेंटेंस तुम्हें फॉर्मली किसी को रिक्वेस्ट करना हो, वुड यू प्लीज पास ऑन दैट, तो तब हम वुड लगाते हैं इन अ मोर फॉर्मल वे। एंड सेकेंड यूसेज इज टेंसेस वाइज होता है, will is future oriented and would is past oriented। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस थे। हैड बेटर इज एक्चुअली अ करेक्ट फ्रेज, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। वील कंटिन्यू विद आवर थर्ड क्लास टुमारो। ठीक है, सो प्लीज डू जॉइन इन बैक एट 7 p.m. टुमारो। चलो बाय।